Good morning, dear students. Welcome again in class 11th physics. Okay, and our next topic is vectors. There are some important terms regarding the vectors. Okay, so first of all, we will define what is vector. Next, what is the importance of vectors? Okay, and a few definition in vectors, algebra, position vector and displacement vector, multiplication of vector by real number, multiplication of vector by scalar, resultant vector, okay, and resultant vector analytical approach for vectors, okay, and many things. So one by one we will study, okay. Now first of all, what is vector? You must remember that there are two there are two quantities, which is scalar quantity and vector quantity. Okay, scalar quantity are those quantity which have magnitude only but no direction. For example, mass, length, time, work, etc. Now vectors quantity are those physical quantity which have both magnitude and direction. Okay, वेक्टर्स क्वांटिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी रहेंगी. ओके, एग्जांपल क्या क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्सेट्रा. ओके, अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर्स हैं. हम इनको वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? इसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है. ओके, अब देखिए ग्राफिकली वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. Graphically, a vector can be represented by a straight line with arrowhead on it. That is an arrow line. Hence, the length of line drawn on suitable scale represents the magnitude of the vector, and arrowhead tells the direction of the vectors. Okay? इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे देखिए फोर्स क्या लिखा हमने, F लिखा और ये उसके ऊपर एरो लगाया है. ठीक है. In a vector can be represented by a single letter with arrowhead on it. The force, which is a vector quantity, can be expressed by F vector. Okay. There are vectors can be divided into two types: polar vectors and axial vectors. Okay. Now, what is polar vectors? These are those vectors in which have a starting point or a point of application. Okay, polar vectors क्या होते हैं? These are the vectors which have starting point or a point of application. For example, displacement, force are polar vectors. Okay, polar vectors में जो starting point होगा या point of application, मतलब जहाँ से हमने चलना शुरू किया है. जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोलर वेक्टर्स. नाउ व्हाट इज एक्सियल वेक्टर्स? दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल्स. ओके, एक्सियल वेक्टर जो है वो क्या है? जो एक रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्सिस के अलोंग. जो भी उसका रोटेशन का एक्सिस होगा उसके अलोंग हम एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम आर एक्सियल वेक्टर्स. ठीक है, एग्जांपल क्या क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये उसके एग्जांपल. फॉर अ वेक्टर हैविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट विल हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस तरीके से डायग्राम में देखिए आप लोग. ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है, अब इसमें कोई भी पार्टिकल्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. उसी तरीके से जब कोई भी पार्टिकल्स क्लॉकवाइज अगर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा ये एक्सियल वेक्टर हो जाएगा. और ये क्या है? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. नाउ
some definition, write the definition. Modulus of vector. What is the modulus of vector? The magnitude of vector is called modulus of vectors. ठीक है, जो भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हमने क्या लिखा, ए बार, ये वेक्टर है, तो इसका मोड हम कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से. दिस इज द फॉर्मूला फॉर modulus of a vector या representation of modulus of a vector. Now what is unit vector? A unit vector of given vector is a vector of unit magnitude and has same direction as that of given vectors. Okay, unit vector जो है उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए इस तरीके से, ए कैप या ए हैट भी इसको बोला जाता है. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर्स. इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें यूनिट होगी उसकी यूनिट क्या होगी, 1 होगी. मतलब जो भी यूनिट वेक्टर है उसे हम यूनिट वेक्टर कब बोल सकते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो. और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये देखिए, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए या मॉड ऑफ ए. इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ there are some more vectors. Position vector. Okay, what is position vector? Position vector are those vectors which shows the position of any moving object in the xy plane. Consider the motion of an object in xy plane with origin at O. Let at any time t the object will at position A. If we draw an arrow with its tail at point O and head at point A. ये देखिए, ये पोजीशन वेक्टर है ओ ए. ठीक है, ओ इज़ कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, जहाँ पर ओ क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से वेक्टर इस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर. इसको हम जनरली आर वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. द पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट प्रोवाइड्स टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, देखिए, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर करी है ये हमें बताएगा. इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन भी बताएगा. ओके, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लेट एट टाइम टी डैश, ये यहाँ पे कुछ टाइम टी था, अब ये टाइम कितना है, टी डैश. टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया. द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, देन ओ बी इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी डैश. तो ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजिशन वेक्टर बता रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, जब वो टी डैश टाइम पर हो. हेंस ए बी वेयर टेल और इनिशियल पोजिशन इज एट ए एंड हेड और टिप इज एट बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो है, ए बी लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है. ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. ठीक है, तो इनिशियल में से फाइनल को हम, फाइनल में से इनिशियल को जब हम माइनस करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. एग्जांपल देखिए, किसी भी वेक्टर ओ ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के. आई केप मतलब यूनिट वेक्टर को यहाँ पे शो कर रहा है, जे केप मतलब ये भी वाई एक्सिस को यहाँ पर शो कर रहा है. ओ बी वेक्टर हमने मान लिया एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो एक्स डैश माइनस एक्स प्लस वाई डैश माइनस वाई जे के. ठीक है, बोथ द वेक्टर्स, both the position vector and displacement vector are described above the example of vectors in a plane
और इन 2 डायमेंशंस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, इस तरीके से हम इनको ग्राफिकली